Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Faryatar, host of the today's session, which is organized by Youth at Work Pakistan on the topic I am in control. To address this wonderful session in which we learn how we can learn or strengthen our skills to come up with the best version in front of the world. To address this session, we have a wonderful speaker, Mr. Jila Abrar, which is a professional writer, an expert blogger, educational leader, and a public speaker. Welcome you, ma'am. Sajila Brad, please unmute your mic and start your talk. And before proceeding the session, it is my humble request to all participants, please unmute your mic until the speaker complete her talk. And at the end of the session, we have a questionnaire session, and we will encourage your all questions in that section. Thank you. Yes, ma'am, please continue. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. And thank you, Youth for Pakistan, that you have invited me for this talk. So let's talk because we have only 1 hour and I do not want to waste your time. So let's start our session, that is I am in control. I hope everybody can see the screen. Yes, ma'am, we can see. Okay. All right. So today we are going to talk about how can we become the manager of our time and our lives. So let's start by I just want you to reflect that is your life this that you are writing your life with full confidence and you are taking your life where you want it to be, or your life is like this, that your life has become just wild and it's just throwing you away and you are not able to catch up with your life, and instead of writing your life and directing your life is dragging you, right? So मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि हम ये दूसरी पिक्चर की तरह होते हैं बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर लाइफ, और बिल्कुल लगता है कि जैसे किसी बहुत बड़े मसाइल में हम फंसे हुए हैं, वी आर अनएबल टू कंट्रोल आवर लाइफ. तो अभी हम देखते हैं कि इस मसले को किस तरह से हम कॉम्बैट कर सकते हैं. आई होप कि आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं. वैसे तो जब मैं यूथ से बात करती हूँ तो अफसोस होता है कि बहुत सारा हमारा जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनकी कोई ड्रीम्स ही नहीं है. तो या तो वो बस व्लॉगर बनना चाहते हैं या फिर वो टिकटॉक बनाना चाहते हैं, या कोई बड़ी ड्रीम्स नहीं है उनकी. तो आई वुड लाइक यू ऑल टू रिफ्लेक्ट कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं. आप अगर चाहें तो अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर भी कर सकते हैं कि आपकी ड्रीम्स जो हैं वो क्या हैं. ठीक है. अब आप ये सोचें कि आपकी जो है वो आपकी जो है वो डेली रूटीन क्या है. क्या आपकी डेली रूटीन के अंदर आपकी ड्रीम एम्बेडेड आपको नज़र आती है, या आपकी डेली रूटीन जो है बस वही सुबह उठना है, वही नाश्ता करना है, वही आपने खाना पीना है, एंड देन यू जस्ट लीव फॉर योर ऑफिस or your college or university, then do the same thing in the day and come back and take a nap and then have a cup of tea, and then talk with the family for a while and then have dinner and go to sleep. Is that your routine? If you focus कि आपका डेली रूटीन क्या है, तो आप ये गौर करें कि अगर if you have a dream, तो does that dream can you see that dream in your daily life? ठीक है. यानी आपके डेली रूटीन में कहीं आपको नजर आता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी आप करते हैं कि जो आपको अपना ड्रीम फुलफिल करने में हेल्प करें. तो अगर तो ऐसा है तो मैं आपको थम्स अप करती हूँ और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप बेहतरीन डायरेक्शन में जो है वो जा रहे हैं. लेकिन अगर नहीं ऐसा हो रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर क्या वजह है, क्या मसला है कि आप ड्रीम्स भी कर रहे हैं, आप ड्रीम्स को सोच भी रहे हैं, बट योर ड्रीम्स आर नोवेयर इन योर लाइफ, इन योर एवरीडे लाइफ, यू कैन नॉट सी देम.
तो फिर हमारी ड्रीम्स तो मर जाएंगी. You know, we will not be able to fulfill them. हमें कभी भी वो जिंदा होती हुई हम उनको लिव थ्रू नहीं करेंगे, हम उनको कभी देखेंगे नहीं, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हमारी कोई ड्रीम्स हैं तो वो हमारी एवरीडे लाइफ में, डेली रूटीन में नजर आनी चाहिए. अच्छा, आप ये बताएं कि आपके कल के क्या टारगेट्स हैं? कल के कोई टारगेट्स हैं या नहीं? यू कैन शेयर इन योर इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप शेयर करना चाहें कि आपके कल के टारगेट्स क्या हैं, या क्या आप अवेयर हैं कि आपके कल के टारगेट्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अगले दिन के लिए कोई भी टारगेट नहीं होता, इसलिए क्योंकि जो है वो हम एक ही रूटीन को रोज रिपीट करते हैं, यू नो. और ड्रीम्स जो है ना, वो हमने जैसे लोग फैमिली की पिक्चर्स को अपने वॉलेट्स में रखते हैं, to sometimes, you know, we just look at the picture and enjoy and उसको फैंटेसाइज करना और उसको देखना और उसको एंजॉय करना. तो हमारी ड्रीम्स भी उसी तरह से हमारे ऐसा लगता है कि वॉलेट्स के अंदर पड़ी हुई हैं और हम कभी कभी उसको उठाकर जो है वो उसको देख लेते हैं. तो अगर ऐसा है तो फिर वी हैव टू रीथिंक. अच्छा, इकरा शाहिद ने कहा है कि शी वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल वुमेन इंशाल्लाह. और जो है यहाँ पर किसी और ने भी कोई शेयर किया हुआ है. अच्छा, ठीक है. तो ज़्यादातर क्या होता है कि वी फील ओवरलोडेड एंड ओवरवेल्म्ड बिकॉज हमें लगता है कि हमने सोचा कुछ था और ज़िंदगी में हो कुछ और ही रहा है, ठीक है. इसलिए क्योंकि हमारी कॉन्शियस एफर्ट्स उस तरफ नहीं होती कि जिस तरफ के हमें जाना होता है. अच्छा, हम क्यों ऐसा फील करते हैं? हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये बात फील करते हैं कि हम ओवरलोडेड हैं, हम ओवरवेल्म्ड हैं, हमारे पे बहुत बर्डन है, हम अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम गौर करें तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट आर आवर गोल्स इन आवर लाइफ, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यू नो आई एम अ मदर, आई एम अ ग्रैंड मदर, आई एम अ सास, a very negative word in today's world. ओके, और फिर मैं टीचर हूँ, फिर मैं एजुकेशनल लीडर हूँ, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ भाभी, एंड आई एम अ नन, एंड आई एम अ बहू टू, एंड आई एम अ वाइफ, एंड द लिस्ट गोज ऑन, राइट. इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे रोल्स होंगे जो आपको फुलफिल करने हैं और जिनको अच्छे तरीके से फुलफिल करना चाहते हैं आप. और आप चाहते हैं कि आप बॉस हैं, आप सबऑर्डिनेट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, मतलब बहुत सारे. जब आप अपनी लाइफ के रोल्स पे गौर करते हैं तो आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, अच्छा ये सारे रोल्स हैं मेरे, राइट. तो वी ऑल हैव मेनी रोल्स इन आवर लाइफ और हमें अक्सर लगता है कि वी फेल इन दोज मेनी ऑफ दोज रोल्स, राइट. अगर हम बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं तो कभी कभी लगता है कि हम बहुत अच्छे पेरेंट नहीं हैं, या जो है अगर हम बहुत अच्छे पेरेंट हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म अपने ऑफिस में नहीं कर पा रहे हैं, या हम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पा रहे हैं, या हम बहुत अच्छे टीचर नहीं बन पा रहे हैं. तो वी फील ओवरवेल्म्ड, राइट. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने रोल्स थे? ठीक है, वो प्रॉफिट थे, वो फुल टाइम दाई थे, he was a husband, he was a father, he was a teacher, he was a friend, he was a general of an army and a mujahid, he was a statesman, politician, a grandfather, and the list goes on, right. लेकिन जब हम उनकी सीरत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ही नेवर गॉट इरिटेटेड. वो कभी भी इरिटेट नहीं हुए. कभी भी हमें नहीं पढ़ने में आएगा कि वो चिढ़ गए या उनको गुस्सा आ गया या वो अपनी वाइफ्स के साथ कोई झगड़ा कर लिया उन्होंने, ठीक है. उनके पास कैसे जिक्र करने का टाइम था, उनके पास कैसे ऐसा होता था कि उनकी कभी नमाज नहीं छूटती थी,
उनके साथ कैसे ये होता था कि वो रोज तहज्जुद पढ़ पाते थे, वो जंगें लड़ते थे, वो ट्रेडर थे, ही वॉज द बेस्ट ऑफ हस्बैंड, ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर, ही वॉज द बेस्ट ऑफ ग्रैंड फादर्स, ही वॉज द बेस्ट स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन। तो कैसे ऐसे होता था कि वो अपनी लाइफ के किसी भी रोल में फेल नहीं हुए थे, एंड ही वॉज एन एग्जाम्पल फॉर अस, राइट। तो हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा था कि वो हर चीज कर पा रहे थे और हम हर चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कैसा महसूस होता है कि जब हम अपने रोल्स को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, राइट। वी गेट स्ट्रेस्ड, वी गेट डिप्रेस्ड, वी गेट इरिटेटेड, और हम अपने घर वालों से लड़ते हैं, या हम अपने ऑफिस में लड़ते हैं, या फिर हम जो लड़के होते हैं, मेरे यहाँ पे बहुत सारे यंग बच्चे भी होंगे, तो वो जो है वो एक दूसरे से झगड़े करते हैं और यूनिवर्सिटीज में they fight, right? Because unko, they feel, because everybody feels that we are not fulfilling the roles that have been given to us very appropriately, right? मसला क्या है? मसला ये है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि whoever turns away from my remembrance, indeed he will have a depressed life, right? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो है मेरी याद से गाफिल होंगे तो आपकी हर हाल में डिप्रेस लाइफ होगी, ठीक। तो ये पॉइंट जो है वो हम मिस कर देते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि वी शैल रेज हिम अप ब्लाइंड ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, कि वो इंसान जो है वो ब्लाइंड तो उठाया जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में अल्लाह की तरफ से ब्लाइंड बना हुआ था, अल्लाह की निशानियों से, तो वो फिर वहाँ पर जो है वो ब्लाइंड उठाया जाएगा, राइट। सो वी मिस दिस पॉइंट कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अस, राइट। हर चीज हमारे इख्तियार में है और हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। नो वी कैन नॉट, राइट। तो पहला सबक ये है कि जब भी हम कोई प्लानिंग करेंगे, जब भी हम कोई फ्यूचर की ड्रीम देखेंगे, तो अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करेंगे कि वो ड्रीम फुलफिल हो जाए। जैसे जंगे बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पूरी प्लानिंग की, बेहतरीन प्लानिंग की, राइट। और उसके बाद से सजदे में गिर गए, एंड ही प्रेड एंड ही प्रेड एंड ही प्रेड, राइट। यस सुहेल, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? Suhail, you wanted to ask me something? So, इसी तरह से हम देखते हैं कि ये भी हम मिस कर देते हैं, राइट। प्लानिंग साइकिल, कि हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करें और हम क्वेश्चन करें कि ओके ये जो चीज़ है जो मेरे सामने है, ये ड्रीम है या ये कोई रास्ता है या कोई रोल है या कोई मंजिल है, तो मैं यहाँ इस तक कैसे, क्वेश्चन योरसेल्फ कि मैं इस तक कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं इस तक कैसे पहुँच सकती हूँ। फिर उसकी प्लानिंग करें, फिर उस प्लानिंग पे एक्ट करें, फिर उस अच्छा एक्ट करने तक भी हम कर लेते हैं, लेकिन फिर हम रिफ्लेक्ट नहीं करते। इफ वी फेल तो हमें रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि हम फेल क्यों हुए, राइट। तो रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। और रिफ्लेक्शन आपको पता है ना, मिरर रिफ्लेक्शन होता है। आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर में कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। अब अगर आपका फर्ज करें खवातीन के लिहाज से मैं कह रही हूँ कि आपका काजल फैला हुआ हो, तो वुड यू नॉट करेक्ट इट? अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आईना देखने का फायदा क्या हुआ। या कोई नौजवान है और वो उसके बाल जो हैं वो उड़ रहे हैं, वो अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो क्या वो अपने बालों को संवारेगा नहीं? तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू सी अ फ्लॉ तभी नजर आएगा जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, मिरर में देखेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, सोचेंगे कि भाई मैंने क्या गलती की है, राइट। एंड देन अगेन द साइकिल बिगिंस। फिर अपनी गलती को ठीक करना और उस पर अमल करना जो है वो जरूरी, राइट। इस्लाम में भी प्लानिंग का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है ना उसके ऊपर। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे सॉरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम देखो कि क़यामत कायम हो रही है और तुम्हारे हाथ में एक पौधा है तो तुम जल्दी से लगा दो, राइट, वेट ना करो। इसी तरह से उमर बिन खत्ताब का कॉल है कि जब तुम दुनिया के मामलात को देखो तो ऐसे प्लान्स बनाओ कि जैसे तुम्हें हमेशा दुनिया में रहना है, और जब तुम आखिरत के प्लान्स बनाओ तो तुम इस तरह से प्लानिंग करो कि जैसे तुम्हारा ये आखिरी दिन, ठीक है, जैसे तुम कल मर जाओ।
इसी तरह से देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको नबूवत मिली तो उन्होंने क्या दुआ की थी, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि ओ माय लॉर्ड एक्सपैंड माय चेस्ट, ease my task, remove the impediment from my speech so they may understand what I say, and give me a minister of my family, Arun, my brother, and to my strengthen me through him and make him share my task. ठीक है, इन्होंने ये दुआ की थी. इस दुआ में अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम की प्लानिंग को देखें तो मूसा एक्सप्रेसेस his willingness to open his heart and mind to receive more profound faith and wisdom to enable him to accomplish his task successfully. ठीक है, तो उन्होंने अपने शराय सदर की दुआ की. ठीक, सेकंड एलिमेंट मूसा की दुआ में क्या है, जब मूसा अलैहिस्सलाम की के कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था जिसको उनको डील करना था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि हम किस तरह से इसको डील करेंगे. एंड लास्ट प्राइमरी कंसिडरेशन मूसा की क्या थी कि लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट, यानी ह्यूमन एलिमेंट एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट हिम टू कैरी आउट हिज मिशन. फॉर दिस रीजन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का प्लान जो था उसमें इंक्लूडेड था कि उनके ब्रदर हारून अलैहिस्सलाम को जो है फिजिकल और मॉरल सपोर्ट के लिए फिरौन के पास जाने से पहले जो है अल्लाह ताला उनको भी अपना नबी जो है वो बना दे ताकि जो है उनको हेल्प हो जाए. ठीक है, तो दिस वाज हिज होल प्लान कि एक तो उनको अपने दिलो दिमाग को खोलना था ताकि वो अच्छी तरह से टास्क को समझ जाएं, फिर अपने कम्युनिकेशन के मसले को हल करना था, फिर उसके बाद अपने सपोर्ट के लिए उनको कोई फर्द चाहिए था कि जो उनको सपोर्ट करे, जिसके लिए उन्होंने फिर हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो दुआ की. ठीक है, तो अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज की तरफ आते हैं कि जिससे हम इंशाल्लाह ताला ज़्यादा प्रोडक्टिवली अपनी लाइफ को जो है वो गुजार सकेंगे. लेट्स सी कि हम क्या एक्टिविटीज और स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं. सो my first suggestion to you is please stay calm, right? In all the chaos of the life, stay calm. कैसे रहेंगे काम? भाई आपको चाहिए एक अदर सेकंड ब्रेन, राइट? एक ब्रेन को आपको अल्लाह ताला ने दिया है एंड यू नीड अ सेकंड ब्रेन, अ कंसिस्टेंट सिंपल सिस्टम फॉर रिमेंबरिंग थिंग्स दैट डज नॉट रिलाई ऑन ब्रेन पावर. अगर हम हर वक्त चीज़ें ही याद रखने में अपनी ब्रेन पावर को यूज़ करते रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, तो लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ हम उसमें से भूल जाएंगे, राइट? तो यू नीड अ सेकेंड ब्रेन. अब सेकेंड ब्रेन से मेरी क्या मुराद है? यू नीड अ सिस्टम, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो एक सिंपल डायरी हो, जिसमें आप हर वो चीज़ लिखें कि जो आपको याद रखनी है ताकि आपको अपने जहन को फारिग कर सकें, राइट? यू हैव इट रिटन समवेयर, ओके? और फिर उस सिस्टम को ट्रस्ट करें और यूज़ करें. अच्छा, हम जब ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते हैं, तो हम बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं ना. डायरी भी खरीद लेते हैं अच्छी सी, और मार्केट्स भी खरीद लेते हैं और बहुत सोचते हैं कि हम, बट वी वी डू नॉट कंसिस्टेंटली यूज़ इट. मसला क्या होता है कि वी डू नॉट कंसिस्टेंटली यूज इट और फिर वो थोड़े दिनों बाद वी लूज इट, राइट? सो यू हैव टू थिंक कि भाई आपको क्या, आपके काम आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है. आपको लगता है आप मोबाइल में ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने टू डूज, या फिर आप कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं, या आपको डायरी रखना अच्छा लगता है, तो उसको ट्रस्ट करें और फिर उसको यूज़ करें. और प्रोडक्टिव होने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप लिस्ट बनाएं. ठीक है, आई होप कि आप में से सबने कभी ना कभी कोई टू डू लिस्ट जो है वो बनाई होगी. तो फिर हमारी स्टैंडर्ड टू डू लिस्ट जो है वो फेल हो जाती है. जो भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारी टू डू लिस्ट के ए और बी से आगे या 1 और 2 से आगे हम बढ़ ही नहीं पाते, वो टू डू लिस्ट रोज रिपीट हो रही होती है. उसका रीज़न ये है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लिस्ट. देयर इज अ प्रोजेक्ट लिस्ट, देयर इज अ मास्टर एक्शन प्लान लिस्ट, एंड देयर इज अ डेली टू डू लिस्ट. हम इसको मिक्स कर देते हैं. ठीक है, हम जब अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें खिचड़ी सी पक जाती है, और ये तीनों किस्म की चीज़ें जो है ना वो मिक्स होकर वो कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है कि जो अचीवेबल नहीं होती, स्मार्ट नहीं होती है. वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको अचीव कर सकें. तो फर्स्ट थिंग इज द प्रोजेक्ट लिस्ट.
राइट. प्रोजेक्ट क्या होता है? अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेक्ट क्या होता है? Anything that consists of more than one steps is a project, right? A series of actions लेने के बाद अगर उसने कंप्लीट होना है तो वो हमारी जिंदगी का प्रोजेक्ट है, राइट? जैसे अभी ईद गुजरी है, ईद उल अजहा, तो उसमें बकरा खरीदना वाज अ प्रोजेक्ट, यू नो. आप मार्केट को सर्वे करेंगे, आप मार्केट को देखेंगे, बकरे पसंद करेंगे, तस्वीरें मंगवाएंगे, उनकी प्राइजेस करवाएंगे, ठीक है. फिर जो आपकी प्राइस से मैच होता होगा, आप 10 दफा, ये जितने भी मेरे यंग बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, मेल्स, वो समझ सकते हैं कि 10 चक्कर मंडी के लगेंगे, राइट? उसके बाद वो बकरा खरीदा जाएगा. For my girls, I can give an example of buying dress for wedding, ठीक है, जिसके लिए जो है वो surfing the net है for samples, and then assessing current trends and color combinations, और फिर 10,000 दफा बाजारों के चक्कर, और फिर उसके बाद जो है actually buying, right? So this is a project. If you want to buy a phone, देन आप रिसर्च करेंगे कि कौन सा फ़ोन मुझे चाहिए, किस तरह का चाहिए. अगर आपके ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एग्जाम लेना है, तो एग्जामिनेशन इज अ प्रोजेक्ट, राइट? बिकॉज उसमें मुझे सिलेबस डिसाइड करना है, मुझे सर्कुलर बनवाना है, मुझे टाइम टेबल बनाना है, मुझे बच्चों को देना है, फिर मुझे उसमें जो है टीचर्स से चेक करवाना है कि वो सिलेबस ठीक है कि नहीं है. फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर्स बनेंगे, फिर उनकी स्क्रीनिंग होगी, फिर मैं चेक करूंगी या कोऑर्डिनेटर चेक करेगा. यानी देयर आर मेनी स्टेप्स कि जिसके बाद वो एग्जाम में एक्चुअली अपीयर बच्चे होंगे, ठीक है. तो इसी तरह से आपके ऑफिसेज में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते होंगे कि जिनके ऊपर आप काम करते हैं. जैसे सेल्स के लोग, उनको नए क्लाइंट्स लेकर आने होते हैं, नए क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, राइट? एक टारगेट अचीव करना होता है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जिससे उनको गुजरना पड़ता है, ठीक है. तो वी शुड हैव अ प्रोजेक्ट लिस्ट कि जिसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हों एट अ टाइम, हम कितने प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है. उसमें घर के काम के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई अपने घर का दरवाजा चेंज करना है, या आपने कारपेंटर से कोई काम करवाना है, या आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, या फर्नीचर चेंज होना है. दीज आर ऑल्सो प्रोजेक्ट्स, राइट? या अपने बच्चे के लिए स्कूल डिसाइड करना है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट, राइट? तो एनीथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेप इज अ प्रोजेक्ट. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि जो जिन पे हम एट अ टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है. अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड टू डू लिस्ट होती है, हम क्या करते हैं, उसमें कोई सेंस ऑफ स्केल नहीं होता, राइट? तो हम टाइनीएस्ट एक्शन को किसी बड़े से प्रोजेक्ट के साथ मिक्स करके लिस्ट बना देते हैं. ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी है. और फिर हमें लगता है कि अब मैं क्यों ओवरवेल्म हो रही हूँ, मुझे क्या मसला है, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा, व्हाई आई एम सो ओवरवेल्म, क्यों मैं ओवरलोडेड हो रही हूँ. इसलिए क्योंकि हमारी लिस्ट ही गलत है, राइट? हमें पहले प्रोजेक्ट लिस्ट बनानी है, उसके बाद हमें मास्टर एक्शन लिस्ट बनानी है. मास्टर एक्शन लिस्ट क्या होती है कि आप हर प्रोजेक्ट के जितने भी काम, यानी जितने भी स्टेप्स आप कर सकते हैं, यानी उसको स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे स्टेप्स आप लिखेंगे मास्टर एक्शन लिस्ट में, ठीक है. यानी हर प्रोजेक्ट को आप उठाएंगे और उसके अंदर जितने भी एक्शंस इन्वॉल्व हैं कि जिसके बाद वो फाइनली कंप्लीट होना है, उनकी आप एक लिस्ट जो है वो बना लेंगे, ठीक है. It contains every single action you could currently do for each and every project. ये जरा थोड़ा डिटेल्ड काम होगा, लेकिन ये आप काम अगर कर लेंगे तो आप बिलीव करेंगे आपकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी. मैं ये बातें जो है वो सिर्फ किसी किताब से पढ़ के नहीं कर रही हूँ. आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल दिस इन माई लाइफ, और बहुत मुझे इससे फायदा हासिल हुआ, इसलिए मैं ये सब बातें आपसे भी कर रही हूँ. और इंशाल्लाह ताला आपको भी, अगर आप इस पर अमल करेंगे, सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर इसका फायदा होगा, ठीक है. तो मास्टर एक्शन लिस्ट जो है ना वो आपकी, उसकी लैंग्वेज एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई एक्शन इनकरेज हो रहा हो, ठीक है. यानी आप ये नहीं लिखेंगे कि कॉल द कारपेंटर, बल्कि आप ये लिखेंगे टू कॉल द कारपेंटर टू टेक द रेट्स
of the new door that I want to change in my house, या to meet the client for convincing him to buy my product, right? यानी आप पूरा एक्शन लिखेंगे, इसीलिए इसको मास्टर एक्शन लिस्ट कहा जाता है कि जो आपको मोटिवेट करेंगे टुवर्ड्स एक्शन, ठीक है? एक चीज होती है ना, आप देखते रहते हैं सिर्फ और एक्शन नहीं करते, और कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर बायस फॉर एक्शन होता है कि वो फौरन अमल करने वाले होते हैं, राइट? तो इसमें आप ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि जिसमें जो देखते ही आपको पता चल जाए कि ओके फोन उठा के मुझे करना क्या है। अब आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल कॉल द कारपेंटर, और आप भूल गए कि आपने कॉल में क्यों लिखा था, ठीक है? तो इससे बचने के लिए कि why did you write to call the carpenter or why did you write to meet the client, what was the purpose, you write the whole thing, that why do you want to meet the client, why do you want to call someone, whomever you need to call, right? तो मास्टर एक्शन लिस्ट में फिर ये एक डिटेल लिस्ट होगी जिसमें हर प्रोजेक्ट के हर स्टेप को आप लिखेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें सिर्फ वही चीजें होंगी कि जो राइट वे आप एक्शन ले सकते हैं, यानी आप इसमें भी गड़बड़ नहीं करेंगे कि 2-3 चीजें मिलाकर आपने लिख दी हैं, बल्कि आप सिंगल एक्शन लिखेंगे, यानी जो फौरन किया जा सकता हो, ठीक? उसके बाद आती है द डेली टू डू लिस्ट, राइट? अब उसमें आप ये समझ रहे हैं कि जो आपकी मास्टर एक्शन लिस्ट है दैट इज अ वार्डरोब फुल ऑफ क्लोथ्स, और टू डू लिस्ट क्या चीज है कि आप उसमें से वो कपड़े निकालेंगे जो आज आपको पहनने हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दरवाजे की मिसाल ले लेती हूँ कि आपको दरवाजा चेंज करना है, तो आपको पहले कोटेशन लेनी है, किससे? कारपेंटर से, लकड़ी वाले से, फिर कारपेंटर से डे डिसाइड करना है, साइज डिसाइड करना है, ये सब चीजें करनी है। तो आज क्या करेंगे आप, राइट? अगर आप कारपेंटर को ऑलरेडी फोन कर चुके हैं तो फिर आज नेक्स्ट स्टेप की बारी है, ठीक है? तो देयर आर, सो इन योर मास्टर एक्शन लिस्ट देयर इज एक्शन फॉर एवरी प्रोजेक्ट। तो आप वहां से पिक करेंगे कि किस प्रोजेक्ट का कौन सा काम आज करना है मुझे, राइट? आज उसके लिए जो है वो फिजिबल है, राइट? तो वो डेली टू डू लिस्ट विल बी वर्केबल फॉर यू, ठीक है? इसलिए कि उसमें गड़बड़ बातें और मिक्स बातें और बड़ी और छोटी सब बातें नहीं होंगी, बल्कि सिंगल एक्शन होंगे। So this small step practice at the start of every day will increase your focus and help you say no to the myriad of distractions that are just about to come your way. अगर आपके पास प्लान तैयार है, आपके पास टू डू लिस्ट बनी हुई है, और आपको कोई ऐसा फोन आ जाता है कि जिसको टाला जा सकता है, जिस पे बाद में भी बात की जा सकती है, तो तुम्हें आपको पता होगा कि ओके टुडे आई हैव टू अचीव दिस टारगेट, सो आई कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट नथिंग ऑन द फोन, राइट? मैं सिर्फ फन के लिए इस वक्त फोन पे बात नहीं कर सकता हूँ। तो फिर आप उस फोन को आप क्योंकि फोकस आपकी लिस्ट के ऊपर होगा, तो आप बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक खोली और आपने कोई पोस्ट पढ़ी और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन, राइट? तो जब आपके पास करने को काम होगा, प्लान होगा, आपके पास लिस्ट मौजूद होगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन स्क्रॉलिंग ऑन द फेसबुक और एनी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एनीथिंग। तो आपको पता होगा कि आज मेरे पास इसके लिए कितना टाइम है, राइट? स्क्रीन टाइम भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, फिर ये देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप दिन के आखिर के हिस्से में पहुंच गए हैं और आपको लग रहा है कि बहुत सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है, आप करने के लिए मोटिवेटेड भी हैं, आपके पास टूल्स और इंफॉर्मेशन भी हैं, लेकिन फिर भी आप जो है हवाओं में और खलाओं में देख रहे हैं, और या फिर अब तो खैर खलाओं में और हवाओं में कोई नहीं देखता है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और बस अपना टाइम वेस्ट करे चले जा रहे हैं। Under those circumstances, you will often tell yourself कि मेरे टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। लेकिन एक्चुअली आपका टाइम का मसला नहीं है, एक्चुअली यू रैन आउट ऑफ अटेंशन, ठीक है?
تو وی ول ٹاک اباؤٹ اٹینشن مینجمنٹ. ہم نے سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ تھی کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اپنے پلانس پورا پلان کرنے کے بعد. وی شوڈ آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو ہیلپ اس. دوسری بات ہم نے لسٹ کی ہے کہ ہمیں کیسی لسٹ بنانی چاہیے اور کس طرح سے پھر اس کو مینیج کرنا چاہیے. اب ہم تیسری بات کر رہے ہیں کہ اٹینشن مینجمنٹ کیسے کریں. ٹھیک ہے, ہم ایک خاص ٹائم کے اوپر کیوں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے ریٹائر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اور اب مجھے لیٹ جانا چاہیے اور اب مجھے بس فیس بک دیکھتے رہنا چاہیے, یا پھر آج کل عثمان دیکھ رہے ہوں گے یا ارطغرل دیکھ رہے ہوں گے تو پورا پورا دن وہ دیکھ رہے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی اٹینشن کو بھی مینیج کرنا چاہیے. کیا چیز ہے جو ہماری اٹینشن کو کھاتی رہتی ہے؟ 24/7 واٹس ایپ, سوشل میڈیا, اوور سلیپنگ, calls with sibling and ammi, calling friends, hanging out with friends for the whole of the night and then grumpily waking up next morning. اور یہ ورک شاپ جب میں نے بنائی تھی تو اس وقت میرے پاس کمبو پہ لوگ لگے ہوئے تھے. اب مجھے اس کو چینج کر کے ویسے کچھ اور کر دینا چاہیے تھا. مجھے پتا نہیں ہے کہ آج کل کون سا ڈرامہ لوگوں کو گراسپ کیے ہوئے ہیں تو یہی لکھا ہوا رہ گیا ہے. تو وی شوڈ نو کہ ہماری اٹینشن جا کہاں رہی ہے. ٹھیک ہے, کس چیز میں, مطلب یہ ہماری ڈیوٹی ہے, کوئی نہیں ہمیں بتائے گا. ہمیں ہر وقت لگتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹیک اے ڈائری اینڈ رائٹ اٹ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور پھر 10 منٹ بعد پھر اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور پھر 10 منٹ بعد پھر چیک کریں ٹو سی کہ بھئی آپ کا ٹائم کہاں جاتا ہے. اینڈ آئی مطلب اس وقت کافی سال پہلے کی یہ بات ہے, آئی وازنٹ میچور انف. تو میں نے سوچا کہ اچھا چلو لیٹ می ٹرائی دس رائٹ. تو میں نے جب وہ فرسٹ لکھا تو آئی واز سٹنگ آن مائی بیڈ رائٹ and doing nothing. So I wrote کہ بھئی میں بیڈ پہ بیٹھی ہوں and I'm just looking here and there and I'm doing nothing. So after 10 minutes, I was sitting on the bed doing nothing, and then after 10 minutes I was sitting on a sofa and doing nothing. And then after 10 minutes I had come downstairs and I was sitting on another sofa scrolling my Facebook account. So I realized, oh my God, for 1 hour I was doing nothing. کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں میں. تو اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو ذرا سا یہ چیک کریں نا, آفٹر 15 منٹس دیکھیں کہ میں کیا کر رہی تھی اور اب میں کیا کر رہی ہوں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارا ٹائم تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہماری اٹینشن یہی سب چیزیں کھاتی جا رہی ہیں, رائٹ. تو وی ہیو ٹو ری تھنک آور لائف. تو اس کو کیسے کریں گے, لیٹس سی. دیر آر 3 levels of attention: proactive attention, active attention and inactive attention. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو اٹینشن کون سی ہے کہ جب آپ فلی مطلب الرٹ ہیں, آپ کا فوکس بالکل اچھا ہے اور آپ بالکل کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں, رائٹ. ایکٹیو اٹینشن کون سی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ انرجیٹک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا مطلب اتنا انرجی لیول ہے, اتنا ایکٹیو اٹینشن ہے کہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں اور کرنے کے قابل ہیں. پھر ان ایکٹیو اٹینشن کون سی ہے کہ اب آپ کا دماغ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, آپ کرنا چاہ رہے ہیں کام لیکن اب آپ کا دماغ کام پہ بہت زیادہ لگ نہیں رہا کیونکہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ اس وقت اٹینشن کا لیول ڈاؤن ہو چکا ہے, رائٹ. تو آپ کو ڈسکور کرنا ہے, یہ کوئی آپ کے لیے ڈسکور نہیں کرے گا, آپ کو خود ڈسکور کرنا ہے کہ آر یو اے مارننگ پرسن, آر یو ناٹ مچ آف اے مارننگ پرسن. جیسے میری فیملی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کو صبح اٹھ کر ان سے بات کرنے گناہ ہو جاتا ہے, رائٹ. ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ چائے وائے پی لیتے ہیں اور تھوڑے 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو 10 بجے وہ بڑے زبردست ہو جاتے ہیں اور بہت خوش اخلاق ہو جاتے ہیں, رائٹ. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون سے والے ہیں. Perhaps you pick up mid morning, have a slump after lunch and pick up again towards the end of the day. ٹھیک ہے, تو آپ کی ایکٹیو اٹینشن کس وقت ہے, آپ کس وقت جو ہے وہ بالکل فریش ہوتے ہیں اور کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور آپ کا مائنڈ بھی بالکل ایکٹیو ہوتا ہے اور نئے نئے خیالات اور نئے نئے آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف کہ آپ
आपको पता चले कि आपकी अटेंशन का लेवल जो है किस वक्त कैसा होता है, राइट? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हेन योर अटेंशन इज एट पीक. क्यों? इसलिए क्योंकि वही आपका वो टाइम है कि जिसमें आपको अपनी बेस्ट एक्टिविटी जो है वो करनी है, कि जब आपका अटेंशन लेवल बिल्कुल पीक पर होगा, राइट? तो आप किस तरह से इसको काम करेंगे? योर अटेंशन इज एट इट्स पीक एंड यू आर वॉशिंग डिशेज और वाचिंग ड्रामा एंड डोंट नो व्हाट टू डू. कैसा लगेगा, राइट? यानी आपकी अटेंशन एट इट्स पीक है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, मोटिवेटेड हैं, और आप कर क्या रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है, राइट? और उसको आपका हाई अटेंशन लेवल है इस वक्त, और आप रिपोर्ट लिखने के लिए बैठते हैं और एकदम से आपको ख्याल आता है कि अरे यार कल कार्ट्रिज खत्म हो गया था प्रिंटर का, तो कार्ट्रिज रिफिल करना है, और आप जो है वो उठते हैं और कार्ट्रिज को रिफिल कराने से बुलाते हैं, जबकि उसकी इस वक्त आपको जरूरत भी नहीं है. तो दैट इज रियली क्रिमिनल. जब आप अपने अटेंशन लेवल्स को फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी एक्टिव अटेंशन को तो आप क्रिमिनली वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको वो काम कर रहे हैं कि जिसके लिए अटेंशन की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, बाइक पे जाके या गाड़ी पे जाके प्रिंटर को रिफिल करना तो ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत इंटेलिजेंस और एक्टिव माइंड की जरूरत हो. वो तो आप अपने ग्रम्पी टाइम पर जा सकते हैं जब आपका बिल्कुल अटेंशन लेवल लो हो, राइट? So there are patterns of proactive attention for everyone. ऐसा नहीं होता कि हर रोज ही आपका एक ही टाइम पे बिल्कुल एक्टिव अटेंशन हो, लेकिन जब आप फोकस रखते हैं ना कि मुझे अपना एक्टिव जो प्रोएक्टिव अटेंशन लेवल वो है उसको जाया नहीं करना और उस पर फोकस करना है और उसको पकड़ना है, तो फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, ये मोहम्मद फैसल कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया जो है वो यूज करता हूँ. तो अभी हम इस पे फिर बात कर रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी जान इस मुसीबत से छुड़ाएं. हर वक्त सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं. सो समटाइम्स यू नो इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स मिनट टू मिनट. ठीक है, यानी हमारी अटेंशन का लेवल जो है ना वो डे टू डे चेंज होता रहता है. किसी दिन मैं सुबह में बहुत एक्टिव होंगी, किसी दिन मैं दोपहर में बहुत एक्टिव होंगी, किसी दिन मेरी शाम बहुत एक्टिव होगी क्योंकि मैंने अच्छा रेस्ट कर लिया होगा, राइट? So we have to catch ourselves when our proactive attention level is at its peak. ठीक है, अब इस चीज के लिए आपको आपकी ये डेली टू डू लिस्ट जो है ना वो हेल्प करेगी कि आप जब अपनी अटेंशन लेवल को फोकस करेंगे तो आपके पास मौजूद है आपकी लिस्ट कि जिसमें आप ये कर सकते, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि मुझे इस वक्त मेरे अटेंशन लेवल के लिहाज से इस लिस्ट में कौन सा काम है जिसको मैं कर सकता हूँ इस वक्त या कर सकती हूँ, राइट? तो आपकी जो अटेंशन लेवल है उसके मुताबिक यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम योर डेली टू डू लिस्ट कि इस वक्त कौन सा काम मैं कर सकती हूँ. इस वक्त मैं थोड़ी स्लो हूँ तो लेट मी कॉल द कारपेंटर, राइट? या इस वक्त मैं बहुत एक्टिव हूँ तो लेट मी राइट अ ब्लॉग, कि अभी मेरा दिमाग आइडियाज आ रहे हैं, और राइट अ स्टोरी और राइट समथिंग, राइट? डू समथिंग क्रिएटिव. ठीक है, तो जैसा आपका अटेंशन लेवल है वैसा ही टास्क आप अपनी टू डू लिस्ट में से पिक करेंगे कि आप उसको क्या करें. ठीक, देखिए बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप इनएक्टिव और एक्टिव अटेंशन के दरमियान में होते हैं, ठीक है, एंड यू डू नॉट हैव अ क्लू अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज कि आप क्या कर सकते हैं, और इसीलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. आपकी क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी होता है, आपको स्ट्रेस होता है और बैड डिसीजंस होते हैं. इसलिए क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते कि उस वक्त हम क्या करें, तो हम उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, राइट? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए नहीं भेजा कि वो वक्त आया करता रहे. आपको अल्लाह ने बड़ी बड़ी ड्रीम्स अचीव करने के लिए दुनिया में भेजा है, राइट? तो अपने टाइम को क्रिमिनली वेस्ट ना करें. उस इनएक्टिव और एक्टिव अटेंशन के दरमियान में भी जो टाइम है आपके पास, जब आपका प्लान रेडी होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे इसको क्या करना है, तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा. सो प्रोटेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम इंटरप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Remember that your attention
प्रोएक्टिव अटेंशन इज योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी, ठीक है। आपका जो प्रोएक्टिव अटेंशन स्पैन है वो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, ठीक, उसको आपने ज़ाया नहीं होने देना। और vultures of interruption or potential distraction will circle you trying to make you a victim, ठीक है। हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कभी फोन आ जाएगा, कभी कोई काम पड़ जाएगा, कभी बॉस बुला लेगा, कभी कोई मसला हो जाएगा, कभी कोई मसला हो जाएगा। अब आपको अपनी ये वाली जो वो है ना टाइम, जिस वक्त आप पूरे प्रोएक्टिव अटेंशन आपकी हाई लेवल पर है, उस टाइम को सेव करना है फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो पहले से ही आप अपना टाइम बता दें, लोगों को इन्फॉर्म कर दें, अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर दें, एयरप्लेन मोड पे कर दें, उसको साइड में रख दें, कहीं दूर रख दें ताकि आप काम कर सकते हो, काम कर पाएँ, ठीक है। और आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके साथी हैं, उनको आप बता दें कि इस टाइम से इस टाइम पर डू नॉट डिस्टर्ब मी बिकॉज आई विल बी डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। और जो है वो फिर किसी इंशाल्लाह वेबिनार में अगर इन्होंने मुझे इनवाइट किया फैसल ने, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको टेक्निक्स भी बताऊंगी कि पोमोडोरो और ये सब टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सम हाउ सेव दैट प्रोएक्टिव अटेंशन टाइम, राइट। उसको डिस्ट्रैक्शंस में और लोगों के साथ मतलब जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उससे जो है वो आप बचाएं, ठीक है। सच्ची। So stay in control, aggressively, ruthlessly, defend your attention, and do that thing that can only be done when you have your high attention level, ठीक है। तो उसको बिल्कुल रूड हो जाए लोगों के साथ आप कि जो है मैं इस वक्त नहीं बात कर सकता, या मैं बात नहीं कर सकती, या मैं इस वक्त ये वाला काम नहीं कर सकता because I'm busy doing something very very important, right? So अब मैं ये टास्क आपको दे रही हूँ कि जो है वो आप पुट योर ड्रीम्स ऑन योर प्रोजेक्ट लिस्ट। जितने भी ख्वाब हैं आपके, जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उन सारी ड्रीम्स की को एक प्रोजेक्ट लिस्ट में बनाएं। राइट ऑल द एक्शंस नीडेड इन योर मास्टर एक्शन लिस्ट। क्या चाहिए उसके लिए, किन चीज़ों की ज़रूरत है। Put the actions you wish to start with on your tomorrow's to-do list according to your attention level. फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कल के लिए कि कल उन ड्रीम्स में से किस ड्रीम के किस एक्शन को आप कल कर सकते हैं, राइट। हम तो पहले से ही सोच रहे थे ना, इस चीज़ के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इस चीज़ के लिए मेरे पास ये नहीं है, इस चीज़ के लिए मेरे पास स्किल नहीं है। अगर कोई स्किल चाहिए, किसी कोर्स में एडमिशन लेने की ज़रूरत है, तो आप कल डिसाइड करें कि ओके आई एम गोइंग टू सर्वे कि कहाँ कहाँ वो कोर्स होता है, कितने कितने पैसों का होता है, कहाँ पे फ्री भी अवेलेबल है, राइट। तो आप रिसर्च करें, फाइंड इट आउट एंड स्टार्ट डूइंग, ठीक है। तो आपने अपनी ड्रीम्स की प्रोजेक्ट लिस्ट में लिखना है, उनके सारे एक्शन जो आप उनको कर सकते हैं उनको एक मास्टर एक्शन लिस्ट बनानी है, और फिर यू हैव टू पुट दोज एक्शंस टू स्टार्ट विद टुमारो, यानी कल ही आपने ये काम करना है। इसलिए क्योंकि वेबिनार्स अटेंड करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और जब तक कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, राइट। सो enjoy 10 minutes solitude every day, have a date with yourself once a month। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इससे क्योंकि देखिए सॉलिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिंदगी की हसल बसल में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि we do not have time to think about our dreams। So have 10 minutes every day कि जिसमें आप अपने बारे में सोचें, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्यों आए हैं, what is your purpose, right? What can you achieve, what should you achieve। तो 10 मिनट खामोशी में सारी फैमिली से, सारे दोस्तों से, फ़ोन से कट कर रोज़ बैठें और रिफ्लेक्ट करें, और महीने में एक दफ़ा अपने साथ डेट करें, और ऐसे काम करें कि जो आपको करने में मज़ा आता है और वो करें और उनको एंजॉय करें, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी। इससे आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट। आप किस चीज़ में अच्छे हो। जब आप अकेले अपने इंटरेस्ट का कोई काम करते हो ना, जैसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कोई वर्कशॉप्स करा सकती हूँ,
बट समबडी टोल्ड मी कि भाई तुम्हारे अंदर बोलने की एबिलिटी है, तुम वर्कशॉप्स करा सकती हो. एंड देन आई रिफ्लेक्टेड ऑन इट, और फिर मैंने एक दिन जो है सोचा कि चलो एक करवा के देखते हैं. अब फिर मैंने एक वर्कशॉप कराई एंड आई थॉट कि इट वेंट वेरी गुड. लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हालांकि मैं तो बहुत शेकी थी और बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी वो करवाते हुए. तो इसी तरह से मैंने एक दिन डिस्कवर किया कि मैं लिख अच्छा सकती हूँ. तो आई रोट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, और मैंने जो है वो बहुत सारे ऐसे काम किए. लेकिन ये सॉलिट्यूड में बैठ कर ये ख्याल आता है, ये आप जिंदगी की हसल बसल में तो यू कैन नेवर डिस्कवर योरसेल्फ. आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आप कौन हो, आप किधर से आए हो, आपको किधर जाना है, आपकी एबिलिटीज क्या हैं. दुनिया तो आपको वो बातें बताएगी जो आप नहीं कर सकते. आप अपने आप को बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए सॉलिट्यूड इज नेसेसरी. सो हैव सम टाइम विद योरसेल्फ, ताकि जो है वो आप अच्छे तरीके से सोच सके कि आप दुनिया में क्यों आए हैं और आप क्यों जो है वो क्या एबिलिटीज हैं आपके अंदर. दिस इज माय 50 ड्रीम्स जो मैंने 2020 में लिखी थी. मैं जस्ट फॉर सैम्पल आपको दिखा रही हूँ कि जो है मैं बुक पब्लिश करना चाहती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है मेरी उर्दू टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से. मैं अपनी कंपनी चलाना चाहती थी, तो मैंने जनवरी 2020 में जो है वो द यू फॉर्मर्स के नाम से अपनी कंपनी लॉन्च की, और मैं उसको उसके थ्रू वर्कशॉप्स वगैरह करवाती हूँ. मुझे पहला पारा याद करना था, तो मैंने तकरीबन 3/4 अल्हम्दुलिल्लाह उसको याद कर लिया है अभी तक, और आई होप कि उसको आगे भी दूंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें से अचीव भी कर ली है. यूट्यूब चैनल बनाना था, वो भी बना लिया है. ठीक है, तो ये सब मैंने अपनी ड्रीम्स लिखी थी, और ये मेरे वीकली प्लान्स हैं. मैं आपको सैंपल इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं भी कहीं बस किताबी बातें कर रही हूँ. ये सब चीज़ें मैं करके अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, इसलिए जो है मुझे पता है कि ये काम आती है. ठीक है, तो ये मेरे डेली प्लान्स हैं, और इस तरह से मैं अपना डेली बुलेट जर्नल को मैं फॉलो करती हूँ, मतलब उसके तरीक़ेकार को, और बुलेट जर्नलिंग के थ्रू जो है मैं ये सारी वीकली प्लानिंग करती हूँ. सो दैट्स इट गाइस, जज़ाकल्लाह खैर. अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम हियर टू आंसर द क्वेश्चन. शिजा कह रही हैं कि आई बिलीव यू हैव पावर ओवर योर माइंड, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू. यस, इफ अल्लाह विल्स. So any other questions you want to ask me? Jazakallah ma'am, thank you so much for such a wordful session. इतने अच्छे आपने इस्लामिक व्यूज के अकॉर्डिंगली इतना अच्छा से आपने उसको सारा एक्सप्लेन किया. मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फॉर लाइक 40 to 50 minutes वी आर वेल मोटिवेटेड नाउ, लेकिन आपको हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कोई ऐसे कंपेनियन हो या ऐसे कंपनी हो जो हमें बार बार याद दिलाती रहे या हमें ट्रैक पे लेकर आती रहे. जैसे जैसे हम अपने ट्रैक से निकल रहे हैं, वो हमारी कंपनी ऐसे हो. मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप कुरान सीख रहे हैं तो आप मदरसे की आपकी रूटीन हो, आपकी मदरसे की रूटीन है, तो आप कभी भी आप उससे छुट्टी करेंगे, उसके अलावा आपकी रूटीन खराब नहीं होगी. आप सीखी जा रहे हैं सीखी जा रहे हैं, फाइनली इवेंचुअली आप अपना जो भी टारगेट है वहां से सीखने का वो कंप्लीट कर लेंगे. जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम वहां से प्रेप क्लास में एडमिशन लेते हैं, हम 10th करके ही वहां से निकलते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं विद कंसिस्टेंसी. तो इस तरह का होना चाहिए कि ये विद 40 to 50 मिनट्स की अगर आपके साथ टॉक की है, आपने हमें सिखाया है, बहुत अच्छा लगा, आइडिया हो गया. मैंने आपने लास्ट 2 स्लाइड शेयर की हैं जिसमें आपने अपने कैलेंडर शो किए हैं, उसकी मैंने पिक्चर्स ली हैं और वो बहुत अच्छा था. मतलब वो उससे हम इंशाल्लाह लर्न करते रहेंगे. इसके अलावा डिफरेंट वर्कशॉप एज ए स्टूडेंट हम इसके अलावा भी अटेंड करते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं या जो यूथ होती है वो यूथ होती है, यंगस्टर्स होते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं. आज इन्होंने सीखा है, कल कोई और मसला आ गया. सम वांट्स कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, वो स्कॉलरशिप के लिए स्ट्रगल करते हैं एंड दे अचीव. लाइक कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं लेकिन वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाते.
لیکن جب وہ اکیلا رہنا شروع کرتے ہیں کچھ مہینوں بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی بھی تھی, وہ یہ بھی اچیو کر سکتے تھے, اور وہ ان کی پرفارمنس جو گروپ میں ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی یہاں ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ سوچتی ہوں کہ یونٹی از دا اسٹرینتھ. تو بالکل ہمیں صحیح بات ہے پریا. اصل میں کمپنی, وہ تو کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اگر آپ کے فرینڈ ہر وقت ہلا گلا کرنے والے اور ہر وقت مستی مذاق کرنے والے ہیں تو آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اگر آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ سیریس مائنڈیڈ ہیں, دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں آپ لوگوں کا پلیٹ فارم دیکھتی ہوں, میں اکثر فیصل کے جو ہیں میرے پاس وہ واٹس ایپ اسٹیٹسز آ رہے ہوتے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہو ماشاء اللہ سے, تو دیکھو ایک دوسرے کا سہارا ہو نا, تو اس سے تو بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کی کمپنی ایسی ہو کہ جو آپ کو موٹیویٹ کرے. اور اصل میں دیکھو ہمارے لیے اب ویبینارس اور آن لائن کورسز یہ سب نا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بن گئے ہیں, انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ بن گئے ہیں بس. ٹھیک ہے, ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے اینڈ دیٹس اٹ. ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی زندگی میں. جب تک ہم اپلائی نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سرٹیفکیٹ میری الماری میں پڑا رہے گا تو اس سے میری زندگی کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑے گا. یس ایگزیکٹلی, وہ ایک سینٹینس بولتے ہیں نا کہ تھوڑا دھکا سسٹم لگا رہے, ہمیں کوئی دھکا دیتا رہے, کرتے رہو, تو پھر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اور آپ اپنے ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو ٹارگیٹس پہلے سوچیں نا صحیح کہ ہیں کیا, پھر ہی آپ اچیو کریں گے. بالکل یہی تو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سوچیں تو کہ ہم اس کا بنانا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. سو اینی تھینک یو سو مچ میم. آپ جیسے جو ایجوکیٹرز ہیں جو ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے. It is my request to all participants, if they want to ask any question, please they can ask. We are encouraging you, please. Any other participant? I think they have no question. Thank you so much, ma'am. Do you want to add any other thing at the end of the session? بس جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می اینڈ گیونگ می اے چانس کہ میں آپ سے بات کر سکوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ پھر دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملا تو پھر ان شاء اللہ اچھی اچھی باتیں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو خوش رکھے. Amin. Jazakallah. Okay, thank you so much all participants and our guest speakers. Jazakallah. Assalamu alaikum to everyone. Thank you.